Hello students, in this class we are going to study about Unit 6 Prose Simpleton. Okay, before moving to the lesson, let us study about the glossary. Here, ant hill means home of ants. Chunti ki pahadi, that is in Urdu, roast, cook, fry or bhunna. Castle means fortified house, or that is in Urdu it is called qila. Moss means bog or lichin or kai. Heap means pile, that is in Urdu dher. Fright means sudden fear, that is khauf. Spell means charm, or in Urdu that is jadoo. Dived means gota lagana, that is plunged. Attempt means try, koshish. Gratitude means thankfulness, that is shukrguzari. Wondering means amazing, surprising. In Urdu it is called tajub karna. Simpleton means foolish, that is sadatan or anadi, that is. Here, before the lesson, a pre-reading having. One dark night, a small party of Mughal soldiers went to Golconda. They saw a moat full of water. So moat means खाई, दो खाई रहती ना, वो खाई, तो खाई से भरा हुआ पानी. Around the palace, around the palace, if it is a palace means here there will be a moat full of water. They had to cross the moat and get into the portals of the palace. इस खाई को पार कर कर इस पैलेस के ऊपर चढ़ना था. So they applied a ladder. Ladder means एक सीढ़ी, that is in pure Urdu it is called zina, against the wall and began to climb it. तो उन्होंने क्या करते हैं, एक सीढ़ी डालकर वो चढ़ने लगते. At once the guards were. Just then a dog began to bark aloud on the top of the wall. तो ये कुत्ता क्या करता, भौंकना शुरू करता जैसा ही इन सोल्जर्स को. At once the guards were alerted and they rushed towards the palace wall. जैसा ही ये कुत्ता भौंकने लगता तो क्या करते वहाँ के गार्ड्स वो वॉल की तरफ निकल जाते. At once the guards were alerted and they rushed towards the palace wall. The guards peeped बोले तो झांकना. Down the wall from the above they saw some soldiers climbing towards them. तो वो देखते हैं कि चंद सोल्जर्स चढ़ रहे वहाँ ऊपर, किसके, वो वॉल के ऊपर. Immediately the guards pushed away the ladder. वो जो जीना लगाए हुए रहती दीवार को उसे वापस ढकेलती. And the soldiers on the ladder fell into the moat. खाई में गिर जाती. The barking dog attracted some more guards. तो वो जो भोगता था ना कुत्ता, उन्हें क्या करता और चंद guards को attract करता. They made fires and spotted the enemy and they stopped the enemies from coming within the portals of the palace. तो तमाम गार्ड मिलकर वो सोल्जर्स को अंदर आने से रोकते हैं. Thus the plan of Mughal soldiers was foiled and Golconda was saved by the vigilant and faithful dog. तो इस छोटे से कुत्ते की बदौलत क्या हुआ, उनकी जो प्लान था किनका, मुगल सोल्जर्स का, वो नाकामयाब हुआ. इस स्टोरी का मकसद क्या है, तो एक छोटा सा जानवर रंधे, कोई छोटी चीज़ रंधे, अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत रहती, हमें उसे कभी किनारा कशी नहीं करना. उसकी जो क्या है ज़रूरत हम ना हर वक्त पेश आ सकती. तो इसका मफहूम है. तो सर्टेन क्वेश्चंस हैं. हु बिगैन टू क्लाइम up the ladder? Why did the guards rush to the place and peep down the wall? What did the guards do to the ladder? What was the role of the dog in the event? Next, come to the lesson, simpleton. A king had two sons who were thought to be very clever. अपने आप को वो बहुत समझदार समझते थे. But they wasted their time and money and never did very much good in the world. They had a younger cousin whom they called Simpleton because he was
क्वाइट एंड सिंपल। तो क्या है, एक राजा के 2 बच्चे थे जो हमेशा वक्त सर्व करते थे, कोई काम नहीं करते थे, लेकिन उनका एक चचाजाद भाई था जो बहुत सिंपल था और क्वाइट था। उसे वो क्या नाम से पुकारते थे, सिंपलटन के नाम से पुकारते थे। दे मेड फन ऑफ हिम टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर गेट अलॉन्ग इन द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट क्लेवर एज दे वर। तो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे कि वो उनसे क्लेवर नहीं है। वन इवनिंग they all went out for a walk and in their path they found an ant hill। तो उस वक्त उन्होंने क्या है, एक चूंटियां जा रही थी, उनका एक पहाड़ देखती। द 2 elder brothers wanted to upset the ant hill। तो दो जो बड़े भाई थे वो इन एंट हिल को परेशान करना चाह रहे थे। सो दैट they could see the little ants running about their fright and carrying away their eggs to a safe place. But Simpleton said, no, let the poor little things alone. Do not spoil their nice house. Then they went on until they came to a lake where many ducks were swimming। तो जैसा ही ये 2 बड़े भाई क्या है, उन एंड्स को परेशान करना चाह रहे थे, लेकिन सिंपलटन बीच में आकर क्या करने लगा, रोका। नहीं ऐसा मत करो, उनको सेफ से उनके घर पहुंचने दो। तो जैसा ही वो जाते गए, एक वो लेक के पास आए, वो एक तालाब के पास आए जहां पर उन्होंने डग्स को देखा। द ब्रदर्स विश टू कैच वन टू रोस्ट बट द सिंपलटन सेड, please leave the poor birds in peace. I can't bear to have you kill any of them. So the ducks were left to live, and 3 brothers walked on again until they came to a bee's nest in a tree with honey running all over the trunk। तो क्या है, जैसे ही इस सिंपलटन ने इन चूंटियों को बचाया, उसी तरह क्या है, ये 2 भाई इन डक्स को भी खाना चाह रहे थे, रोस्ट करके खाना चाह रहे थे, लेकिन क्या है, इस सिंपलटन ने इनको यहीं पर रोक दिया, नको मत खाओ करके। उसके बाद वो आगे जाते हैं तो देखते हैं एक दरख्त है, एक दरख्त में क्या है, बहुत सारे क्या शहद के मक्खियों का झुंड है जहां पर बहुत ज्यादा शहद लगी हुई है। द 2 brothers wanted to light a fire। तो आग लगाकर क्या करना चाह रहे थे, वो मक्खियों को भगाकर वो वहां का शहद खाना चाह रहे थे। बट द यंगर कजिन बेग्ड देम नॉट टू डू। तो वो जो सिंपलटन था उनसे गुजारिश करे, नको ऐसा मत करो करके। लिव द पुअर थिंग्स इन पीस सेड ही, आई कांट बेयर टू थिंक ऑफ देम बीइंग बर्न। तो वो कहने लगा सिंपलटन, मैं ये देखना नहीं चाहता कि ये छोटी सी जो क्रिएचर्स है ये आग में जल जाए। अगेन दे लिसन टू हिम इवन दो दे थॉट हिम स्टूपिड। तो वो क्या समझे, ये एक नालायक है। एंड दे ऑल वॉक्ड ऑन अंटिल दे केम टू अ कैसल। तो वो एक कैसल के किले के पास आए। इनसाइड द कैसल दे फाउंड एन ओल्ड मैन हु वाज डेफ। तो वहाँ पर कैसल में, वो किले में, एक छोटे से किले में एक क्या है, भोरा जिसको सुनाई नहीं देता, वो क्या है, एक आदमी, डेफ आदमी बैठा हुआ था। When he saw them he didn't say a word but led them to table covered with good things to eat। तो क्या वो क्या करता, उनको एक टेबल के पास बिठाकर क्या चंद महज़िब चीज़ें खाने के लिए देता। After they had eaten and drunk as much as they wished, he showed them beds where they could sleep। तो उनको खाने के और पानी का इंतज़ाम करके वो जब वो खा चुके उनको सोने के लिए बेड्स का इंतज़ाम करता। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रे ओल्ड मैन केम टू द एल्डेस्ट ब्रदर, मेड साइन टू हिम to follow and led him to a stone table on which were written 3 sentences. The first sentence said, तो
क्या करता, जब सुबह हो जाती जब वो जागते हैं तो उसमें सबसे बड़े भाई को वो क्या करता, आकर जगाकर उनको एक साइन निशानी दिखाता जिसमें एक स्टोन टेबल था, उसमें 3 जुमले लिखे हुए थे। तो पहला जुमला, इन द वुड अंडर द मॉस आर हिडन 1,000 pearls lost by king's daughter, whoever can find them all in one day before the sun goes down will free the castle from its spell, but if he should search and not succeed before sunset he will be turned into stone। तो क्या कहता, उसमें पहला सेंटेंस लिखा था कि एक जो रानी है, राजा है, राजा की बेटी के बहुत सारे कीमती जो ज्वेल्स हैं, पर्ल्स हैं, वो क्या है, नीचे दफन है। जो कोई भी शाम तक इसे हासिल करेगा तो उसको तो ये जो जादू लगा है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। अगरचे वो इसमें नाकामयाब होता तो वो खुद पत्थर में तब्दील हो जाता। The eldest brother read these words and decided to try. He looked all day, but at sunset he found only 100 pearls and was therefore turned into stone। लेकिन वो हजारों पल्स नहीं ला सका, सिर्फ 100 ला सका। इसकी वजह, इसकी नाकामयाबी की वजह से वो किस में तब्दील हो गया, पत्थर में तब्दील हो गया। इन स्पाइट ऑफ दिस द सेकेंड ब्रदर मेड एन अटेम्प्ट, तो दूसरा भाई भी कोशिश करने, एंड बिगैन हिज टास्क इन द इवनिंग, शाम में वो ये अपना टास्क करने लगा। सो दैट ही लुक्ड ऑल नाइट, बाय सनसेट नेक्स्ट डे ही हैड फाउंड ओनली 200, कहते ला सका वो सिर्फ 200 ला सका। एंड वॉज टर्न्ड टू स्टोन लाइक हिज ब्रदर, वो भी अपने दूसरे भाई के मानिंद पत्थर में तब्दील होगा। At last the simpleton had to look for the pearls, तो लास्ट में जो अनाड़ी भाई था वो कोशिश करने लगा, लेकिन वो अनाड़ी नहीं था, अपने 2 बड़े भाई उसको अनाड़ी कहते थे। बट ही वॉज वेरी अनहैप्पी एट हैविंग टू डू सो, तो वो करने के लिए मजबूर था। He thought that he was so much more stupid than his brother that if he had failed, of course there would be no chance for him। अब उन्हें अपने भाइयों को बचाना लाजिमी था। As he sat thinking about it, he saw coming towards him the ant king whose life and house he had saved। तो जैसा ही वो बैठा हुआ था सोचते हुए, तो एंट्स का जो चूटियों के जो किंग था वो आने लगे, क्योंकि वो उनको मारने से बचाया था। He had brought with him 5,000 of ants, and it was not long before they had found all the pearls and piled upon in a large heap। heap का माना हमने पढ़ा था क्या, ढेर। तो वो चूंटियाँ क्या करने लगे, तो 5,000 से ज़ायद क्या है पर्ल्स को, मोतियों को ढूंढ के लेकर आए और उसके सामने उसका ढेर डाल दिया। Then they went home hardly waiting for his thanks, so they had been glad to help him and this thus show their gratitude। वो इसको सिंपलटन को मदद करके बहुत खुश है। When the simpleton went back to the castle with the pearls, तो वो मोतियों के साथ जब वापस गया कैसल को, he was given another task, उसे और एक जिम्मेदारी दी गई। It was to bring the key of princess sleeping room from the bottom of the lake where it was sunk। तो और एक टास्क दिया गया, उस टास्क में क्या था, जो प्रिंसेस की चाबी जो थी वो क्या है, तालाब में अंदर थी। Of course he couldn't possibly hope to do this by himself, तो वो खुद नहीं कर सकता था। But he went down to the lake, he found there ducks, तो ducks को भी इसने बचाया था, that he had saved from being killed। They knew him at once, तो वो ducks सिंपलटन को जानते थे। When they heard what he wanted, जब वो सुनने क्या वो सिंपलटन चाहता था, दे क्विकली डाइव्ड, बोले तो जोर से गोता लगाए, कहाँ पर, वो लेक के अंदर। एंड गॉट द की फॉर हिम, तो उन्होंने उसको की लेकर दिया। नाउ द थर्ड थिंग ही हैड टू डू वाज
हार्डेस्ट ऑफ ऑल। तो तीसरा जो सवाल था वो बहुत सख्त था। जैसा आपने देखा हातिम ताई के 5-7 सवाल होते हैं, हाँ वो पिक्चर भी है। He had to go into the room where the king's daughters were sleeping, find out who was the youngest and wake her। तो उसमें सबसे बड़ा क्या काम था कि 3 राजा की बेटियां हैं और उसमें यह पहचानना था कि तो उसमें सबसे कम उम्र वाली सबसे छोटी बेटी कौन है, क्योंकि पहली बेटी क्या खाकर सोई है, बेरली शुगर, द सेकेंड सिरप, और दी छोटी जो है हनी। तो तीसरी जो बेटी, लेकिन वो तीनों क्या लग रहे थे, सेम लग रहे थे। बट हाउ कुड ही टेल विच ही हैड ईटन दी हनी, जस्ट एज ही वॉज वंडरिंग व्हाट ही शुड डू अबाउट इट इन केम द क्वीन बी। तो इसने क्या है जो शहद की मक्खियों को भी बचाया था, तो उसमें शहद की मक्खियों की रानी आकर क्या करने लगी, जिसने शहद खाया था उसके उस लड़की के ऊपर क्या करके बैठ गई, जिसके होठों पर बैठ गई। शी क्विकली फ्लीव इनटू ईच ऑफ द सिस्टर, सैट ऑन देयर लिप्स एज दे वर फ्लावर्स। ऑफ कोर्स शी न्यू ऑल अबाउट द हनी बिकॉज शी मेड इट हरसेल्फ। जैसा हम जानती हैं हनी किससे बनती है, तो वो फूलों से बनती है। तो शी could tell which one she had eaten the honey. She remained sitting on the mouth of the youngest. Then the boy knew who the youngest was. He woke her up. The castle was free from the spell. तो जो किला था वो जादू से बाहर आ गया। And everyone who had been turned to stone, जो हर एक जो क्या है पत्थर हुए थे, तब्दील हुए थे, तो फिर इंसान बन गए। यू मे बी श्योर दी ओल्डर ब्रदर्स नो लॉन्गर थॉट देयर यंगर ब्रदर कजिन वॉज सिंपलटन। तो क्या है उसके बाद से जो बड़े भाई थे वो सिंपलटन को अनाड़ी महसूस करना छोड़ दिए और कहना छोड़ दिए। तो इस कहानी का मकसद ये है कि किसी को भी कमतर नहीं समझना। तो इस स्टोरी को लिखने वाले कौन है, ब्रदर्स ग्रिम। तो इन द कमेंट सेक्शन रिक्वेस्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्डर ब्रदर्स कॉल देयर यंगर कजिन, व्हाट डिड द 3 ब्रदर्स सी on the path when they were walking, what did the simpleton say when his brothers wanted to upset the ant hill, why did the simpleton brothers wish to catch one of the ducks, so what did the old man give the brothers in the castle, how many pearls did the second brother collect, what was the second task given to simpleton, and who held simpleton to find the youngest daughter of the king.